Hello, student. How are you all? I hope that you all are fine. Welcome to my YouTube channel. This is Mahesh Shah. This video is for Standard 8, Subject Social Science, Chapter 4, How the Traders Became Rulers. In my first video, we discussed about how did this European came to our country and how did these Britishers started to rule on us. Here the story is continue of the first chapter. फर्स्ट चैप्टर के जो वीडियो थे वो आपने देखे ही होंगे। अगर आपने नहीं देखे तो एक बार उसको आप चैनल को सब्सक्राइब करके देख लेना। तो ये जो स्टोरी है वो आपको पूरी पता चलेगी कि कैसे ये ट्रेडर्स रूलर्स बने इंडिया में। तो बिफोर आई स्टार्ट माय वीडियो आई वुड लाइक टू टेल यू दैट लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो ऑन योर social media platform like Facebook, Instagram, etc. And with that, press bell icon also that you get new notification of any part of or any chapter which uh, belongs to your syllabus, your subject. तो लास्ट वीडियो में हमने मेरे ख्याल से बात की थी गवर्नमेंट के बारे में, फंडामेंटल राइट्स के बारे में हमने डिस्कशन किया था। काफ़ी अच्छा व्यू आपका आया है, कमेंट्स भी बहुत सारे आए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन भी आए हैं और बहुत पॉजिटिव आपका रिस्पांस रहा है। इससे मुझे आइडिया आ जाता है कि आपको मेरा जो एक्सप्लेनेशन है वो समझ में आ रहा है और ये स्लाइड्स के थ्रू जो एक्सप्लेनेशन है वो काफ़ी आपको पसंद आया है, वैसा मुझे आपके व्यू से लग रहा है। पर फिर भी अगर आपको अच्छा लगा है तो आप अपने फ्रेंड्स को भी रिकमेंड कर सकते हो और आपके सोशल मीडिया पे भी ये लिंक आप शेयर कर सकते हो, जिससे और जो स्टूडेंट्स है जिनके पास कोई और फैसिलिटी नहीं है या तो जो स्कूल जाने में जिनको प्रॉब्लम है वो भी घर पे बैठे बैठे इसका बेनिफिट ले सके। तो let's start the video. In this chapter we are going to study, first we start up with the introduction, then after we studied about subsidiary alliance policy, then after expansion of British rule, then after policy of annexation, dissatisfaction of people, some important points is about for think, and in the last there is a small exercise given for your revision work. So in first video, first chapter, arrival of Europeans, in that we studied that how did these Europeans came to our country. They came in our country as a trader in the beginning. ये जो यूरोपियंस जो भी हमारी कंट्री में आए थे, जैसे फर्स्ट 1498 में वास्को दी गामा आया था, फिर उसके 100 ईयर्स के बाद डचीज आए डेनमार्क से, फिर हॉलैंड से डेनिस आए, हॉलैंड से डच आए और डेनमार्क से डेनिस आए, फिर ब्रिटिशर्स आए, फिर फ्रेंच आए। तो ये एक दूसरे का प्रॉफिट देख के आए कि जब पोर्टुगीज़ आए और 100 ईयर्स में उन्होंने यहाँ से जो अर्न किया वो देख के बाकी सब इंस्पायर हुए। और वैसे भी इंडिया की प्रॉस्पेरिटी छुपी हुई नहीं थी, पूरी दुनिया में सबको पता था कि इंडिया कितना डेवलप नेशन है, तो सबको यहाँ से कुछ ना कुछ चाहिए था, यही वजह से वो लोग यहाँ पे आए थे। पर प्रॉब्लम कहाँ पे हुआ कि जब वो यहाँ पे आए और उन्होंने देखा कि हमारी यूनिटी नहीं है, देन दे स्ट्राइक टू रूल ऑन अस। फिर उन्हें आइडिया आया कि हम इनके ऊपर रूल कर सकते हैं। सो दिस इज़ द बिग प्रॉब्लम ऑफ all of us, that we are not trust to each other. We are living in different kind of formation, many diversities are there, religion, language, food, festival, cloth, region, these all are diversities are there, but it is not from uh, some some couple of years ago, it was from last 5000 years ago. So we are living together from last 5000 years, but somehow due to some circumstances we lost the confidence on each other, and that makes benefit to someone else. You heard that story about two cats and one monkey. So then the same situation happened with us, and that is why these Britishers started to rule on us. So if we want to prevent this kind of
situation, then we have to stay together. If we are living together, if we trust to each other, then nobody, no power is there in the world which can rule on India. There is no country is there in the world which can defeat India. And that is the main thing of this history, that this thing we learn from our history. So the children were engrossed in reading the story of two cats and a monkey during the recess. One reading this story, Jay and Mitali were making fun of each other. Their class teacher, who was sitting beside them, said, "Children, this too is a policy. The third party takes advantage of a quarrel between the two. The British had expanded their empire in India with such a policy." Jay asked, "Sir, how is that possible?" The class teacher replied, "Let us go to class and there I will explain about how the British came to India and established their rule over the Indians." So, in short, the policy of divide and rule applied by Britishers between us, and that was the reason how did they rule on us more than 200 years. By the mid of 18th century, the British had started to emerge as a strong power on the Indian political horizon, because in 1857, when they conquered Bengal by defeating Siraj-ud-Daulah in Battle of Plassey, and in 1764 Battle of Buxar, which we discussed in chapter 1 first video. Afterwards they got the revenue collecting power, and that made British East India Company powerful. Do you know that the British came to India only for trade? Initially they took permission to trade in Indian state. Then how did they become the ruler of entire India? The history of the British rule arouses many such questions. To serve their economic interests, they increased their political hold on India with the use of British diplomatic tactics. Tactics means idea, policies. So, not only the divide and rule policy, actually in 1905 Bengal was divided by Lord Curzon by applying this divide and rule policy, but before that many policies Britishers applied. In that case, the two important policy which Britishers applied in our country are going to talk in this chapter, and one of them is, if you see this picture is clearly show that these are the British eye, see, and that eye is watching the whole India. They think in the brain to control the India. This is the thing of this picture. See, these are the different kind of areas which conquered by the Britishers in different kind of years. If you see it properly, then in 1798 this kind of region they control. In 1805 purple region they control. In 1836 green regions they control, and in 1856 they control this yellow hole. So this is how these Britishers rule on whole India. Now we are going to talk about the first policy which Britishers applied, and that is Wellesley's policy of expansion, which is known as the subsidiary alliance policy. So this is the benefit of watching this video, that here many pictures I upload for you एंड दैट गिव्स यू मोर आइडिया. अब यहाँ पे आप वीडियो देखोगे, ये जितने भी पिक्चर्स आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो वो आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है. अब यहाँ पे वेलेस्ली की बात चल रही है, पर वेलेस्ली का पिक्चर नहीं होगा तो आपको कैसे पता चलेगा कि वेलेस्ली कौन था. तो यहाँ पे मेरा वीडियो देखने का बेनिफिट सबसे बढ़िया आपको ये है कि आप यहाँ विजुअलाइजेशन कर सकते हो, आप इमेजिन कर सकते हो हर एक कैरेक्टर को जिसको आप पढ़ रहे हो. और ये बहुत सारी डिटेल्स ऐसी है जो टेक्स्ट बुक में नहीं है, और बहुत सारी ऐसी भी है जो हायर स्टैंडर्ड में है पर 8th में नहीं है. तो यहाँ पे हम जब डिस्कस करते हैं तो पूरी डिटेल्स डिस्कस करते हैं कि जो आपको नेक्स्ट ईयर अगर 9th में ये सेम चैप्टर आने वाला है वापस, तो वहाँ पे जो डिटेल्स होगी वो भी यहाँ पे आपके साथ में शेयर करूँगा. सो फर्स्ट वी टॉक अबाउट द वेलेस्ली's पॉलिसी ऑफ एक्सपांसन. So when Wellesley came to India as the Governor General, cutthroat competition existed between England and France. So how did this Wellesley become Governor General? So after the conquering of Battle of Buxar in 1764,
Britishers applied one new policy. That policy is known as the, wait a minute, I'll tell you the policy name. That policy was known, they passed an act in 1773. That act was known as the Regulating Act. According to Regulating Act, the whole general of different provinces work under the guideline of the governor of Bengal. So the governor of Bengal became Governor General of India. तो मुंबई और मद्रास की जो उनकी प्रोविंसेस थी, वहाँ के गवर्नर जो थे और जो काउंसिल्स थे, वो अब बंगाल के जो गवर्नर बनेंगे उसके अंडर में वर्क करेंगे और वो पूरे डिसीजंस लेंगे। तो बंगाल का जो गवर्नर था वो हो जाता है गवर्नर जनरल। और इस हिसाब से फर्स्ट जो गवर्नर जनरल इंडिया के थे वो थे लॉर्ड वेलेस्ली। दिस इज़ द फोटो ऑफ लॉर्ड वेलेस्ली जो आप आपकी स्क्रीन के ऊपर अभी देख रहे हो, ये वाला। अब इन्होंने जो पॉलिसी अप्लाई की वो पॉलिसी थी सब्सिडरी अलायंस पॉलिसी। सब्सिडरी अलायंस का सिंपल मीनिंग होता है कि एक आपको हेल्प पर कंडीशन के हिसाब से हेल्प के, अगर आपने हेल्प ली तो उसके बदले में आपको कुछ देना पड़ेगा। और सब्सिडरी अलायंस पॉलिसी को दूसरे नाम से जो जाना जाता है वो है स्वीट पॉइजन पॉलिसी, क्योंकि इसमें स्टार्टिंग में तो आपको अच्छा लगता है कि हाँ आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, सब जो भी वॉर करनी है, बैटल करनी है वो ब्रिटिशर्स करेंगे, पर इनडायरेक्टली दे वर टेकन द पावर टू कंट्रोल द स्टेट। और दैट इज़ वाई दिस पॉलिसी इज नॉन एज द पॉलिसी स्वीट पॉइजन पॉलिसी। सो when the Wellesley became the Governor General of India, at that time France and England both having third cut competition, यानी उनके बीच में इतनी कंपटीशन थी कि वो कुछ भी कर सकते थे। अब ये सिचुएशन में गवर्नर जनरल ने जो आइडिया यूज़ किया ब्रिटिश पावर को एक्सपांड करने का, वो पॉलिसी बन गई पॉलिसी ऑफ एक्सपांशन। It was necessary to check France from becoming powerful in India, so as to expand the British rule in India. Wellesley introduced a new plan which was known as the Subsidiary Alliance. तो यहाँ पे ये पिक्चर में अगर आप देखोगे तो किस तरह से ब्रिटिशर्स हमारे जो लोकल रूलर्स है उनको समझाते हैं और किस तरह से इस जो एक टेक्निकली ऐसा बोला जाए कि जो पॉलिसी हमारे फेवर में नहीं थी उनको भी किस तरह से हमारे पास एक्सेप्ट करवाते हैं, उसका ये एक पिक्चर है जो आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके अलावा ब्रिटिश पॉलिसी ब्रिटिश रूल को एक्सपांड करने में वेलेस्ली को हेल्प करने वाले थे ये दो लोग, एक थे डेलहाउजी, ये इनके बारे में भी हम सेकंड पार्ट में बात करने वाले हैं। तो ये दोनों की जो पॉलिसी थी इनकी वजह से ये ब्रिटिश रूल है वो पावरफुल हुआ। ये इस तरह से वो हमारे रूलर के पास उनको समझा के इस तरह से ये ट्रीटी के ऊपर उनकी साइन ले लेते थे। ये पिक्चर में आप क्लियर देख सकते हो। अब सब्सिडरी अलायंस पॉलिसी क्या है वो यहाँ पे एक मैंने डिस्क्राइब किया कि अकॉर्डिंग टू द टर्म ऑफ दिस अलायंस इंडियन रूलर्स वर नॉट अलाउड टू हैव देयर इंडिपेंडेंट फोर्स, यानी ब्रिटिश फोर्स जो है वो ही अब उनके बदले में जो भी बैटल करनी है वो करेगी। दे वेर टू बी प्रोटेक्टेड बाय द कंपनी एंड हैड टू पे फॉर द सब्सिडरी फोर्सेस। तो अब इनको खाली उनको पैसा देना है, या तो कैश दे दो या तो ऐसे रीजन दे दो जिनकी रेवेन्यू इनके जो फोर्स है उसके एक्सपांड जो मेंटेनेंस है उसकी अमाउंट के हिसाब से हो। अंडर रिचर्ड वेलेस्ली एज द गवर्नर जनरल 1798 to 1805 द नवाब ऑफ अवध and Hyderabad were forced to give over part of their territory as they had failed to pay for the alliance। यानी यहाँ से क्लियर पता चल जाता है कि अगर आप उनको कैश पैसा नहीं दोगे तो आपको आपके किंगडम में आपके रीजन में से उनको वो टेरिटरी उनको दे देनी पड़ेगी जहाँ की रेवेन्यू इनके मेंटेनेंस के हिसाब से हो। अब वो टाइम पे हमारे जो रूलर्स थे कुछ वो इस तरह के थे, मनमौजी थे, यानी वो ऐसा सोचते थे कि चलो अभी हमें हमारी आर्मी को मेंटेन नहीं करना पड़ेगा, उनको सैलरी नहीं देनी पड़ेगी। और ये ब्रिटिशर्स जो है वेल ड्रेस्ड है,
इतने सारे मॉडर्न इक्विपमेंट्स है, तो वो बैटल लिए हमारे प्रोटेक्शन करेंगे। पर ये जो हमारे लोकल रूलर्स थे वो ये नहीं जानते थे कि अल्टीमेटली ब्रिटिशर्स उनका कंट्रोल अपने हाथ में ले रहा है। तो ये एग्जैक्टली थी सब्सिडरी अलायंस। तो वेलेस्ली ने ब्रिटिश रूल को एक्सपांड करने के लिए जो प्लान बनाया वो बोला गया सब्सिडरी अलायंस। As per the scheme, any princely state that accept the alliance had to keep and maintain the British army as well as keep a British representative in the royal court. तो यहाँ पे अब प्राइवेसी नहीं रही, क्योंकि अब रॉयल कोर्ट जो भी रीजन की रहेगी वहाँ पे एक ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव रहेगा और इनकी आर्मी को मेंटेन करना है। यानी अब ब्रिटिशर्स को उनकी आर्मी मेंटेन करने का कोई टेंशन नहीं था, क्योंकि हमारे रूलर उनके खाने पीने रहने की व्यवस्था करेंगे। और इनका एक रिप्रेजेंटेटिव अगर कोर्ट में रहेगा, रॉयल कोर्ट में, तो वहाँ पे जो भी प्लान, जो भी डिस्कशन होगी वो ब्रिटिशर्स को पता चल जाएगी। पर हमारे रूलरों के दिमाग में पहले ये बात आई नहीं। दिस वे द ब्रिटिश कुड मेंटेन देयर आर्मी विदाउट स्पेंडिंग एनी मनी। हाउएवर द प्रिंसली स्टेट वर नॉट अलाउड टू यूटिलाइज द आर्मी एट देयर ओन विल। तो आर्मी तो दे दी और उनको एक्सपेंस भी नहीं करना पड़ा, पर ऊपर से कंडीशन ये कि जो लोकल रूलर है वो अपनी मर्जी से वो आर्मी को यूज़ नहीं करेगा। उनको पहले ब्रिटिशर्स से बात करनी है कि मुझे नेबरिंग स्टेट से बैटल करनी है। अगर वो एग्री होते हैं तो बैटल होगी, अदरवाइज तो ये लोग मना करेंगे तो बैटल कैंसिल करनी पड़ेगी। तो अल्टीमेटली पावर उनके पास में नहीं रहा। दिस सिस्टम विच मेड मैनी फील सिक्योर इन द बिगिनिंग मेड देम फील एनस्लेव्ड एंड थ्रेटन्ड। तो स्टार्टिंग में जिनको सिक्योर लगा वो बाद में उनके गुलाम बन गए और इनसिक्योर हो गए। Subsidiary alliance acted like a slow poison for the princely state of India. The Indian state that became the victim of the subsidiary alliance were, तो यहाँ पे ये स्क्रीन के ऊपर आप देखोगे तो आपको क्लियरली दिख जाएगा कि ये जितने भी पिंक कलर वाले हैं उन्होंने सब्सिडरी अलायंस एक्सेप्ट कर लिया था, जिसमें हैदराबाद, मैसूर, अयोध्या, जोधपुर, गायकवाड़ ऑफ वडोदरा, पेशवा पुणे एंड सिंधियास ऑफ ग्वालियर, इन लोगों ने स्टार्टिंग में सब्सिडरी अलायंस ट्रीटी को साइन कर दिया। अब इसके बाद क्या था कि यहाँ पे कौन से स्टेट कब एक्सेप्ट किया वो ईयर मैंने दिया है जो आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं है। तो हैदराबाद ने 1798 में एक्सेप्ट कर ली, अवध में 1801 में, मैसूर ने 1799 में, तांजोर ने 1799 में। इसके अलावा भी हमारे पास है ये, यहाँ पे देखो तो पेशवा ने 1802 में, यहाँ पे दिख रहा है आपको, ग्वालियर ने 1803 में, सिंधिया ने 1803 में। तो ये ईयर में इन लोगों ने ये सब्सिडरी अलायंस ट्रीटी के ऊपर अपना साइन किया था। ये डिटेल्स भी आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं है। अब जो सबसे पहले जिन्होंने ये सब्सिडरी अलायंस पॉलिसी एक्सेप्ट कर ली वो थे नवाब ऑफ हैदराबाद। ये है नवाब ऑफ हैदराबाद, जिन्होंने सबसे पहले सब्सिडरी अलायंस के विक्टिम बने। देन इट वाज मैसूर एंड अयोध्या। फिर मैसूर में टीपू सुल्तान के साथ बैटल की, उसको हरा के ये ट्रीटी साइन की। अब इस तरह से बैटल होती थी, आप यहाँ स्क्रीन के ऊपर देखो तो ब्रिटिशर्स ने इस तरह से टीपू सुल्तान के ऊपर मैसूर में अटैक कर दिया था, जिसकी अभी हम बात करने वाले हैं आगे। तो इस तरह से सबसे पहले जो पॉलिसी एक्सेप्ट की थी वो थे हैदराबाद के नवाब। उसके बाद मैसूर और अयोध्या, फिर तांजोर एंड कर्नाटका मेट विद द सेम फैट। तो ये देखिए यहाँ पे तांजोर और कर्नाटका है, ये मैसूर है, ये सब रीजन ने इसी हिसाब से ये ट्रीटी को साइन किया था। The British made the Maratha fight amongst themselves and consequently made them accept the subsidiary alliance. तो मराठा को ये जीत नहीं सकते थे तो मराठाओं को आपस में लड़वा लिया और फिर जब वो वीक हो गए तो उनके पास से ये ट्रीटी साइन करवा ली। Owing to the losses incurred by Nizam in his fight with Maratha, he was the first to accept this alliance. तो सबसे पहले निज़ाम को ब्रिटिशर्स ने हेल्प की मराठा को हराने के लिए, इसलिए उसने सबसे पहले ये ट्रीटी साइन कर दी। उसके बाद आई बारी टीपू सुल्तान की। ये है टीपू सुल्तान, इसको बोलते थे
टाइगर ऑफ मैसूर. Tipu Sultan of Mysore refused to do so, but after the British victory in the fourth Anglo-Mysore War, ये है फोर्थ एंग्लो-मैसूर वॉर, ये जो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो ये है उसका फोटो, जो फोर्थ एंग्लो-मैसूर वॉर जिसको बोलते हैं ये. तो यहाँ पे एक्चुअली में मराठा और निज़ाम की हेल्प लेके उन्होंने टीपू सुल्तान को हराया. अब टीपू सुल्तान के सामने ब्रिटिशर्स तो जीत नहीं सकते थे, और वैसे भी 3 बार हार चुके थे. जो फर्स्ट चैप्टर का अगर आप वीडियो देखोगे तो उसके अंदर मैंने इसकी डिटेल दी है. पर फोर्थ टाइम में टीपू सुल्तान अकेला हो गए, उसकी अकेले की आर्मी हो गई, और इधर ब्रिटिशर्स की आर्मी, ऊपर से ये मराठा और निज़ाम की हेल्प, उसकी वजह से टीपू सुल्तान डिफीट हुआ. Anglo-Mysore War, Mysore was forced to become a subsidiary state. Maratha chieftains fought amongst themselves after the death of नाना फडणवीस. तो ये है नाना फडणवीस. इनकी डेथ के बाद मराठा किंगडम वीक हो गया, सब अंदर अंदर लड़ने पड़े, क्योंकि मराठाओं का वो टाइम पे जब शिवाजी उनके किंग थे वो टाइम पे ये लोग ज़्यादा लूट करते थे, और यहाँ तक बोला जाता है कि गुजरात में भी वो वहाँ यहाँ तक लूट करने आते थे. तो ये चिफ्टेंस थे और वो आपस आपस में ही लड़ पड़े नाना फडणवीस की डेथ के बाद. वन बाय वन ऑल द मराठा स्टेट बिकम द विक्टिम ऑफ डिवाइड एंड रूल पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश. द अदर स्टेट नेमली अयोध्या, गोरखपुर, तांजोर, कर्नाटका, फारुखाबाद also suffered the same fate. In this way, within a span of 7 years, Wellesley expanded the company rule and made the British the supreme power in India. तो इस तरह से एक सिंगल पॉलिसी से वेलेस्ली ने 7 years में ऑलमोस्ट पूरे इंडिया के ऊपर अपना कंट्रोल कर दिया. इस तरह से वेलेस्ली ने सब्सिडरी अलायंस को यूज़ किया कि हमारे रूलर उसके सामने, हमारे प्रिंसली स्टेट के जो किंग थे वो उसके सामने ज़्यादा टिक नहीं सके. तो ये है सब्सिडरी अलायंस पॉलिसी. इसकी जो डिटेल है वो 9th स्टैंडर्ड में भी आपको सेम कंटेंट, सेम कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है. अब हम बात करते हैं कि कैसे ब्रिटिश रूल एक्सपांड हुआ. तो यहाँ पे आप अगर ये पिक्चर देखेंगे तो 1797 में ये येलो पोर्शन जो है वो ब्रिटिश कॉलोनी थी. 1840 में अब ये येलो पोर्शन देखिए कितना बढ़ गया, और 1857 में देखिए कि ये रेड जो बचा था वो ब्रिटिश कॉलोनी अभी तक नहीं था, बाकी येलो जो आपको दिख रहा है वो सब ब्रिटिश रूल में चला गया. तो इस तरह से ब्रिटिश रूल एक्सपांड हुआ इंडिया में. तो 1797 से 1857 बैटल ऑफ प्लासी तक पूरे इंडिया में इन्होंने अपना कंट्रोल जमाना चालू कर दिया. अब आफ्टर फाइनलाइजिंग द सब्सिडरी अलायंस ट्रीटी विथ मैसूर, निज़ाम ऑफ हैदराबाद एंड मराठा चिफ्टेन, द ब्रिटिश मूव टूवर्ड नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया. अब इनको यहाँ पे हराने के बाद ब्रिटिशर्स ने नॉर्थ इंडिया की साइड ट्रैवलिंग करना चालू किया. यहाँ पे अभी इनके पास इतना पावर नहीं था, क्योंकि यहाँ पे महाराजा रंजीत सिंह का रूल चलता था. ये है महाराजा रंजीत सिंह, आप देख सकते हो ये वाले. ये भी फोटो आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है, और आपने खाली नाम सुना होगा, रणजी ट्रॉफी का नाम सुना होगा, वो इनके नाम से क्रिकेट में चालू हुई थी. तो अब इनको यहाँ पे देख लीजिए कि वो कैसे दिखते थे. दे एंटर्ड इनटू अ ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप विथ नेपाल. नेपाल के साथ उन्होंने दोस्ती कर ली. ये नेपाल और ब्रिटिशर्स का फ्लैग आप देख सकते हो यहाँ पे. ये वो पुरानी पिक्चर है कि जब नेपाल के किंग के साथ ब्रिटिशर्स ने टाई अप किया था, और इस तरह से नेपाल भी इंडिया से अलग हुआ, जैसे 1947 में पाकिस्तान अलग हुआ था. दे फॉट मैनी बैटल्स टू सिक्योर द फ्रंटियर्स. फ्रेंडली रिलेशन with the Sikh king Maharaja Ranjit Singh helped them to win the battle with the Afghans and establish their rule in Sindh. ये है सिंध. तो महाराजा रंजीत सिंह की हेल्प से उन्होंने ये सिंह को कॉन्कर कर लिया, अफगान को हरा दिया. तो उनको फ्रंटियर से अब सेफ हो गए थे. द ब्रिटिश हैड एन एम्बिशन टू कैप्चर द सिख किंगडम विच वॉज अ वेरी पावरफुल किंगडम, बट दे कुड नॉट डू सो एज लॉन्ग एज महाराजा रंजीत सिंह वॉज अलाइव. अब उनको ये जो
सिख किंगडम था, यानी पंजाब रीजन के आजू बाजू का जो था वो भी उनको कंट्रोल में लेना था। पर महाराजा रणजीत सिंह इतने पावरफुल थे कि उनके सामने ब्रिटिशर्स का कुछ चला नहीं। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने महाराजा रंजीत सिंह से फ्रेंडशिप कर ली। अब ये ब्रिटिशर्स की एक और पॉलिसी है कि जहाँ पे उनकी पावर कम होती है वहाँ पे वो फ्रेंडशिप कर लेते थे। सो दे केप्ट फ्रेंडली रिलेशन विद महाराजा रंजीत सिंह। रंजीत सिंह वॉज अ स्ट्रॉन्ग रूलर ऑफ दैट टाइम। ही हैड सेट अप a strong army with the help of European officers for the protection of his state. He had attained victories over many nearby states. After his death, Punjab suffered anarchy. Governor General Sir Henry Harding, तो सर हेनरी हार्डिंग ये है, नहीं, सर हेनरी हार्डिंग का फ़ोटो नेट के ऊपर भी अवेलेबल नहीं था, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं रखा है। पर जब मिलेगा मुझे कहीं से कोई सोर्स से तो मैं आपको पक्का कोई भी चैप्टर में उनका एक पिक्चर दिखाऊंगा। Sir Henry Harding came to India and brought the Sikh rule completely under the British rule with policy of interference and annexation. तो पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन की स्टार्टिंग सर हेनरी हार्डिंग ने की थी, पर फाइनली डॉक्टर एन ऑफ लैब्स एंड एनेक्सेशन पॉलिसी को ज़्यादा पॉपुलर किया डेलहाउजी ने, गवर्नर जनरल डेलहाउजी ने। तो यहाँ पे उन्होंने पंजाब भी कॉन्कर कर लिया। तो इस हिसाब से धीरे धीरे ब्रिटिश रूल पूरे इंडिया में एक्सपांड होने लगा। तो मेरे ख्याल से आज के वीडियो में यहाँ तक जो हमने बात की है वो कम्प्लीटली आपको सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। यही सेम चैप्टर 9th स्टैंडर्ड में भी आने वाला है। तो आप ये चैप्टर, ये वीडियो 2-3 बार भी देखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, आपको पूरा डिटेल उसका आपकी मेमोरी में स्टोर हो जाएगा। अब इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी सजेशन है तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो, और एटलीस्ट आपको वीडियो देख के आपका रिव्यू तो मुझे टेक्स्ट करना ही है, जिससे मुझे पता चले कि कौन से एरिया में मुझे इम्प्रूव करना है या कौन सी नई डिटेल और मैं शेयर कर सकता हूँ। तो ये एक आपको करना है कि वीडियो देखने के बाद आपका जो भी रिव्यू हो वो आप पॉजिटिवली मुझे टेक्स्ट करें, और जो भी कोई भी आपके क्वेश्चन हो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज के वीडियो में यहाँ तक ही रखते हैं। इसके पार्ट 2 में हम पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। तब तक स्टे होम, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।